چین کے صدر شی جن پنگ کی امریکہ کو ایک بار پھر شراکت داری کی پیشکش، دو طرفہ احترام پر مبنی تعلقات کو امریکہ اور چین کے درمیان اہم قرار دے دیا۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا صدر ٹرمپ کا سلوگن چینی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ چین کی ترقی اور میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ امریکہ اور چین تو عظیم قومیں ہیں، چین اور امریکہ کو حریف نہیں پارٹنر ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر کی تعریف کی، اچھا دوست قرار دیا، بولے امریکہ چین تعلقات کی دنیا کی تاریخ میں سب سے اہم تعلقات میں سے ایک ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ تعاون اور خوشحالی کے ایک بہترین مستقبل کی تخلیق کریں۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر کو 24 ستمبر کو امریکی دورے کی دعوت دی۔ امریکی صدر کا دورہ چین، عظیم عوامی حال آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، دونوں بڑی طاقتور شخصیات نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ امریکہ اور چین کو سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھے بغیر ایک دوسرے کا حریف نہیں پارٹنر بننا چاہیے۔ چینی صدر کی امریکہ کو پیشکش، دونوں ممالک کے درمیان محاذ رائے کو نقصان دہ قرار دیا۔ کہا دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اختلاف سے زیادہ ہیں، دو طرفہ مستحکم تعلقات پوری دنیا کے لیے بہترین ہیں۔ اس وقت عالمی صورتحال ہنگامہ خیز ہے، دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ کیا چین اور امریکہ سپر پاور بننے کی جنگ میں الجھے بغیر بڑے ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کی ایک نئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ مل کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جواب بڑی طاقتوں کے رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں دینے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے تائیوان کے معاملے پر امریکہ کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ کہا تائیوان کا معاملہ درست طریقے سے نہ سنبھالا تو دونوں ملکوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور چین متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، امریکی وائٹ ہاؤس کا بیان۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان آبِ ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق ہوا۔ بیجنگ میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ توانائی کی آزادانہ ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے آبِ ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ چین کے صدر نے آبِ ہرمز کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی۔ چین کے صدر نے مستقبل میں آبِ ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے امریکہ سے مزید تیل خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جارحیت کے بجائے دفاع کے لیے ہیں۔ دنیا آج ہمیں ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ وزیراعظم کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بننا ہے، ہر صورت میں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ 1.5 ماہ کے دوران خطے میں جنگ کے بادل منڈلاتے رہے۔ عارضی جنگ کے باوجود دیگر ممالک کی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی۔ حکومت موجودہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ مال کے حق میں ایک قوم یکجان اور دو کال تھی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ اجلاس کے دوران اٹک میں خودکش حملہ ناکام بنانے والے لیاقت خان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر ترمیم اور بجٹ منظوری ناممکن ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا کردار سب کے سامنے تھا۔ حکومت نے کمٹمنٹ پوری نہ کی تو فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی دھمکی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کی حمایت، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا نیب پر ہمارا تاریخی موقف ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے۔ میری اجازت کے بعد پیپلز پارٹی ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف سے میری اور صدر مملکت کی بات ہوتی رہتی ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ معاشی صورتحال سنگین ہے، مشکلات میں مجھے اضافہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر ایران امریکہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی مشکلات رہیں گی۔ حکومت کو معاشی مشکلات کو مد نظر رکھ کر بجٹ بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ایران امریکہ کشیدگی کے لیے امن کی کوششیں جاری ہیں۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ارکان سے بجٹ 2026 پر رائے لی، حکومت سے تحفظات پر بات کرنے کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ حکومت بتائے کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے۔ کیا کچھ محکمے واپس وفاق کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا صوبوں کو منتقل اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے سوالات۔ حکومت سے موقف واضح کرنے کا مطالبہ۔ کہا اسمبلی 28ویں ترمیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حکومت کوئی بھی ترمیم سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے بغیر نہیں کر سکتی۔
अभी तक हमारे सामने कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। सूबों की हक तलफी न करें, एनएफसी में ज्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन को बढ़ाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। तेहरान मुल्क के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ता नज़र से आबनाए हुर्मस तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। चीन खलीज फारिस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमरीका चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चीन का अरूज हमारी कीमत पर या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। बीजिंग के अपने बहरी जहाज आबना हमस में फंसे हैं। महकमा ख़ारजा का कहना है अमरीका और चीन ने इत्तेफाक किया कि किसी भी मुल्क को आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आबनाए हुर्मस पर ईरान की जानिब से लगाए गए एकतरफ़ा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से ख़त लिखा गया। कहा कोई मुल्क एकतरफ़ा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। खित्ते में आबनाए हुर्मस पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरू तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। वो ऐसे इकदाम चाहते हैं कि ईरान हेटमी हथियार न बना सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। बोले बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा अमरीका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि अमरीका ईरान अमन अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें एंगेज और पुरुमीद है। यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार मुबालगा आमेज़ हैं। खलीज बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। कोकेन क्वीन पिंकी के नेटवर्क के तहलका खेज राज बेनकाब। मुलजिमा के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस अफसरान पर संगीन सवालात। कराची में इसी पैसे के जरिए कोकेन की रकम वसूल होने का भी इंकशाफ। राना नासिर और राना अकरम कहानी के असल किरदार करार। जीएनएन ने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर शौहर ने पिंकी का मुनशियात का धंधा खूब चलाया। तलाक के बाद पिंकी ने अपना अलग मुनशियात नेटवर्क बनाया। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। मुलजिमा के मुताबिक इसने कराची का इंचार्ज बनाया। कराची में गुलशन इकबाल इजी पैसा रिटेलर के पास कस्टमर कोकेन के लिए रकम भेजते थे। पिंकी मुनशियात का सारा लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर्स के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाई जाती। मुनशियात रखने के बाद फोटो भेजी जाती। कस्टमर मुलजिमा की बताई जगह से मुनशियात लेता था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जोहर कराची से गिरफ्तार। हुकाम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त की जाती है। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करने का इल्ज़ाम। सरकारी अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत देने का बयान। जासूसी के जरिए पुलिस अफसरान की ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ। पिंकी के अहल खाना भी मनशियात फरोशी में मुलविस निकले। 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया। मुलजिमा के फिंगरप्रिंट्स और नई तस्वीर रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई।
कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की पेशी पर SOPs की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। DIG इरफान बलोच ने SSP सिटी से बयान ले लिया। SHO हनीफ सियाल पेश नहीं हुए। तहकीकाती कमेटी का कहना है SHO से पेश न होने पर बासपर्स होगी। मुल्जिमा को हथकड़ी न लगाने से ज्यादा अहम खवातीन एहलकारों की मौजूदगी न होना है। मुल्जिमा की अहाते अदालत में कैट वॉक से पुलिस से मुतालिक तासुर बिगड़ा। मुल्जिमा को पेश करने वाले खातीन एहलकारों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। सिंध हाई कोर्ट के बाहर एडिशनल IG कराची आजाद खान के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन में मसाइल को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के मुकदमात की तफ्तीश में कोई खला नहीं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कोताही नहीं हुई। असल मामला अदालत जाएगा तो पता चलेगा। तहकीकात चल रही है, इस पर मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्जिमा के मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम को भी तलब किया गया। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन विंग से भी मुबैना रिश्वत के बदले मुल्जिमा को छोड़ने पर पूछगछ होगी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी करा के लाहौर भी लाया जाएगा। कोट लखपत में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। लाहौर में दर्ज केस में अनमोल पिंकी के भाई को नामजद किया गया था। दौरान तफ्तीश रियाज बलोच ने फरार होने वाली अनमोल पिंकी का नाम पुलिस को बताया था। मुनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार करने पर इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुल्जिमा तवील अरसे से पुलिस को मतलूब थी। सिंध के सीनियर शर्जील इनाम मेमन वजीर की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को मअतल करार दिया है। सिंध में मीडिया आजाद है। हमसाए में मावरे अदालत कत्ल होते कभी आवाज नहीं सुनी। शर्जील इनाम मेमन ने कराची रेड लाइन BRT मंसूबे में ताखीर पर माजरत कर दी। इंतजार है कब मनशियात फरोश पिंकी को तमगा दिया जाए। पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो वो भी तमगे की हकदार हो गई है। सेनेटर फैसल वावडा की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। कहते हैं, मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान जमहूरी निज़ाम के तहत काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब होने तक पिंकी जमहूरी ड्रामा भी चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों की बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से मुल्क नहीं चलते। झूठे इल्जामात, नाहरी छुपाने, पोस्टर चिपकाने और जलसे कराने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो इब्तदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। मुकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज की ऑपरेशन इत्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए किया गया। तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों के तकनीकी मेयार की कामयाबी से तौसीक हुई। तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारक दी। कौम की अजीम सपूतों की बहादुरी का एतराफ़। सदर मुमलिकत ने शोहदा और गाजियों में अस्करी एजाज़ात तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारा बसालत का अवार्ड उनकी अहलिया ने वसूल किया। शहीद सिपाही सोबान बलोच और सिपाही इसरार मोहम्मद को भी मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने पर सितारे बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को गैर मामूली खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल सब्तैन रफ़ीक, रेयर एडमिरल मजहर महमूद को भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। शहबाज शरीफ का बढ़ती हुई आबादी पर मौसर और मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने का हुक्म। बढ़ती आबादी के मसाइल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म का आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। काउंसिल में चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शामिल होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की जमानत है। उधर वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलीय्यूब के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। बन्नू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। शहीद एहलकारों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराजी अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा भी दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक खसूसी इजलास। कहा CTD खैबर पख्तूनख्वा ने खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। फोर्स की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत पूरा ताउन करेगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान के खित्ते में अमन के किरदार को मुतनाज़ बनाने की मज़मून साजिश को मोतबर पाकिस्तानी मीडिया और फैक्ट चेक फॉर्म से प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया। गुमराहकुन इत्तलात और नाम निहाज राय के जरिए कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई। हम दुश्मन ना सिर्फ पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों से खाइफ हैं, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि अब्राहम माहिदे के तहत हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। खाम तेल की कीमतें कम न हो सकी। बुलंद तरीन सतह पर मौजूद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल, WTI $101 फी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 952 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,66,498 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुशरा बीबी के अहल खाना और ज़ाती वालिद से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आखिरी हफ्तावार मुलाकात 24 फरवरी को हुई। इसके बाद सिर्फ एमरजेंसी मुलाकातें करवाई गईं। तस्लीम शुदा है कि बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है। जब ये चाहें मुलाकात बंद कर देते हैं। अदालत में मरियम रियाज भट्टू के सोशल मीडिया अकाउंट का तस्करा। सलमान अकरम राजा ने कहा उन्होंने मरियम रियाज के ट्वीट लगाए। वो खातून तो पाकिस्तान में भी नहीं। रूल की खिलाफ वर्जी हो तब भी मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार है कि कौन सी सहूलत देनी है और कौन सी नहीं। विफाकी आईनी अदालत में नैब रिकवरी केस की समाअत। माजी से नैब तरमीम के इतलाक पर अहम सवालात। अदालत ने इस्तफसार किया 8 साल बाद होने वाली कानून साजी का इतलाक माजी के मुकदमात पर कैसे किया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि केस 2015 का है। नैब कानून में तरमीम 8 साल बाद की गई। मुल्ज़िम आधी रकम पहले ही अदा कर चुका है। बाकी 1 करोड़ 8 लाख रुपए की एवज जायदाद गिरवी रखी गई। जब नैब अदालत ने रज़ाकाराना रकम वापसी की मंजूरी की थी तो उस वक्त वहाँ इतराज़ क्यों नहीं उठाया गया। जस्टिस के आगा ने दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ पर रिमार्क देते हुए कहा, ये सब मामूल के बहाने हैं।